So in the past few years, there have been many social media scams that have been happening, and some of our students were involved as a victim, not as a perpetrator. So Bhagwan sir asked me and Archana ma'am to cover the topic to make you guys more aware about the topic. Okay. So first I'm going to show you some samples. Third year students, maybe you might be able to recognize this audio. किसकी आवाज है, अगर पता चले तो बताना कौन से पीजी की आवाज है. स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जब से मैं फर्स्ट ईयर में आई हूँ, एज अ फर्स्ट ईयर मैंने अपनी सभी प्रकार की ड्यूटीज पूरी तरह से सिंसियरली निभाई हैं. So that was one of my PG third years. Yes, Ayushi. Now recognize this. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table do shots, tripping fast and then we talk slow. So Ayushi. So what I did was I used the first audio clip as a source and I cloned her audio and created this song. उसने खुद ने नहीं गाया, even she was shocked. Okay. Then I'll show you another example of AI. That's Dora, Dorothy. We call her Cop Dora. Okay, I won't go into the story क्यों हम Cop Dora बोलते हैं. But I wanted an image जिसमें the image that depicts her as the name that by what we call her. So I just went into an AI. I gave it a prompt, a lady police officer wearing a police uniform, and I got this image. Okay, so with just 5-10 minutes of hard work, I was able to achieve this result. Okay, so this is what we can do with the AI nowadays, deep fakes. Okay, I can, if I wanted, I could have created a video of her. Okay, now even before the advent of AI, we had examples of morphing, face morphings. The most notable example is Paul Walker. He passed away before the shooting of Fast and Furious 7 was completed. So a body double was used and his face was replaced by the actor Paul Walker, right? I hope ये पता होगा सबको. So I showed you all of this to let you know that these deep fakes, fake images, videos, they need a data set to start with. Okay, without the data set, you won't be able to create the fake images or videos. Go. So again, the same thing, if we have the data available, be it photo, video, personal information, we can create fake data, and using that we can create a fake account, be it Instagram, be it Facebook, be it Twitter account. We can create a fake account of that person. Now, the question for you guys, which Indian actress was targeted recently by deepfakes? Rashmika Mandanna. कल ही न्यूज आई है कि द परपेट्रेटर वाज कॉट. ही वाज अ 22-year-old guy. आई थिंक मुंबई का था या नासिक का, नॉट श्योर. एनीवेज, सो व्हाई वुड अ पर्सन क्रिएट अ फेक सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ एनी अदर पर्सन, राइट? उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे. वन ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट इज वो आपको ब्लैकमेल करेगा बाय पुटिंग अप सम ऑब्सीन कंटेंट, और कुछ भी रीजन से ही और शी विल ट्राई टू ब्लैकमेल यू. और आपका किसी से इशू हो गया एंड दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट रिवेंज. ओके, देन सेकंड इज कि ऑब्सीन कंटेंट डाल के दे क्रिएटिंग ए ह्यूज फैन फॉलोइंग, फॉलोअर्स ऑफ द अकाउंट, एंड वहां से वो अर्न कर रहे हैं फिर. एंड देन अगेन देयर आर अदर स्कैम्स कि आपको बोल रहे हैं कि आपसे पैसे लेना चाहते हैं. बेसिकली दीज आर ऑल द थिंग्स. जो सारे तो ऑब्जेक्टिव मैंने पॉइंट आउट नहीं किए, बट दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. But first two जो objectives हैं, they are more personal. Okay. Now, in these two cases, basically you give the person the power, the perpetrator the power to, you can say blackmail you or extract revenge from you. आप अगर उनको वो, if the person says कि I'm going to upload your image on the internet, अगर आप डर जाओगे, then of course the person wins. अगर आप बोलोगे ठीक है डाल दे, क्या हो जाएगा? There's so much content available online nowadays कि उसमें एक इमेज आपकी ऐड हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, right? Common sense. So this is up to you. You give the person the power to blackmail you or get revenge from you. Okay? Now ऐसा कुछ हो भी गया तो what can you do? First thing is जो सबको पता हो गया, I'm sure, that is you have to report it. Okay? पहले मैं दिखाऊंगा कि आप खुद कैसे रिपोर्ट करोगे.
So you come to know कि कोई एक account है जो which is a fake account impersonating you. Okay, so you're going to go to that account. In this example I'm showing you Instagram account. This is my another account. Here I put my 3D projects, but you click on this icon 3 dots, उस पे click करेंगे, you'll see the option of report पे click करना है आपको, and in this you're going to get an option whether you want to report a specific post or the whole account. You're going to select something about this account. When you click that, you're going to get an option there. What do you want to report about this account? Of course, the first one, that is they are pretending to be someone else. Once that is done, you'll get an option whether the person is pretending to be you or someone else. Okay, first as मैंने बताया आप कर रहे हो, so you're going to select the person is pretending to be me. Once you click that, done, report has been submitted. Then उसके बाद क्या करना है? You're going to take the screenshot of that account. आप अपने ओरिजिनल अकाउंट पे पोस्ट करोगे and you're going to ask all your friends to go to that account and report it. सिर्फ एक इंसान रिपोर्ट करेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोग रिपोर्ट करेंगे तो उस पर जल्दी एक्शन होगा, राइट? सो नाउ अगेन द सेम थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आस्क पीपल टू रिपोर्ट इट. लास्ट वीक सिमिलर चीज भगवान सर के साथ हुई थी, नॉट दी ऑब्सीन कंटेंट बट पैसे मांग रहा था बंदा. ओके, सो भगवान सर ने भी यही किया, स्क्रीनशॉट लिया, पोस्ट कर दिया. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? What are you going to do? You're going to report, you're going to help your friend, right? So again the same thing, you're going to click on the 3 dots, you're going to see the report option. वो सारे steps में जाके finally you're going to see who are they pretending to be. आपको click करना है someone I follow. And after that you're going to get the option, आपको जिस person ये जो फेक आईडी, जो दूसरे पर्सन की फेक आईडी है, ओरिजिनल आईडी सर्च करके बस उसको क्लिक कर देना है. ओके, एंड योर रिपोर्ट विल बी सबमिटेड. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. ओके, सेकेंड स्टेप होगा टू फाइल अ कंप्लेन विद द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डायरेक्टली. ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तीनों की लिंक मैंने दी है. बेसिकली तीनों पे व्हेन यू क्लिक ऑन दीज लिंक, व्हेन यू गो टू दीज लिंक्स, यू गोइंग टू गेट अ फॉर्म. एक फॉर्म रहेगा, उसमें आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी. फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि आप ओरिजिनल हो, what you're claiming it, कि ये आपकी ओरिजिनल आईडी and this the other person is fake. Okay, so for that in the form you'll have to submit your full name जो आपकी गवर्नमेंट आईडी पे है, and then इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर आईडी ऑफ द ओरिजिनल अकाउंट. आपका जो ओरिजिनल अकाउंट है उसकी आईडी देना, एंड अ प्रूफ आईडी, गवर्नमेंट आईडी एक अपलोड करनी होगी आपको, जिसमें आपका आईडी एंड आपका फेस क्लियरली दिख रहा हो. ठीक है, सो आपको पिक्चर कैसी लेनी है? समथिंग लाइक दिस. होल्ड इट क्लोज टू योर फेस, click a picture and make sure all the details are visible clearly. In this example, when I zoom in, you can see text was clearly visible. Now इसमें okay, arrows पे ध्यान मत देना, I forgot to edit that. In this you can see in the photo should be clear, the name, date of birth, everything should be clear जो भी relevant है. Okay, of course ये मैंने fake ID रखी हुई है because I don't look like सखी बाई. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट, दिस वर द टू थिंग दैट यू हैव टू डू. मोस्टली इसके बाद ही काम हो जाता है, बट तीसरा स्टेप भी आपको करना है, दैट इज गो टू द पुलिस स्टेशन, फाइल अ कंप्लेन. साइबर रिलेटेड इशू है तो योर कंप्लेन विल बी फॉरवर्डेड टू साइबर सेल, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली फाइल द कंप्लेन विद साइबर क्राइम सेल गोइंग टू देयर वेबसाइट cybercrime.gov.in. and if the person is caught, he'll be tried under section 66D of IT Act and उनको 3 साल की सजा रहेगी and up to 1 lakh फाइन रहेगा. Another section under which the person can be tried is section 416 of IPC, जिसमें up to 3 years of jail रहेगी. And this section 416 में not only basically it covers the cheating by impersonation, not only offline, online also. Okay. So this was what you can do in case आपका कोई fake profile बन गया है, you want it to be taken down. I would suggest तीनों step करना है, so that तीनों side से pressure आएगा social media platform पे, the action will be taken as soon as possible. Okay. Now we're doctors, so we prefer to prevent the disease as compared to managing it, right? So we want it to stop it before it happens. So what are the things that you can do to prevent it from happening? First of all, be careful of your privacy settings. Instagram में there's an option of keeping your account private or public, right? So
make sure your account is private, and if you opt to keep your account public, make sure उसमें आप ऐसा कोई कंटेंट नहीं डाल दें जो that can be misused. Okay. Then be careful of what you share. Of course, जैसा मैंने बताया अभी, अगर आपकी आईडी पब्लिक है, be careful आप क्या शेयर कर रहे हो, कोई भी उसको कॉपी कर सकता है. Then of course, not only your account, आपके फ्रेंड्स भी हैं. आपके फ्रेंड से किसी ने आपको मैसेज किया पैसे मांगने के लिए, यू नो कि भाई वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकता है, इंस्टा पे या फेसबुक पे पैसे क्यों मांग रहा है, राइट? सो यू कैन आस्क योर फ्रेंड, यू कैन रिपोर्ट दिस एक्टिविटी टू द प्लेटफॉर्म एंड टेल योर फ्रेंड कि ऐसा कुछ एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी तेरे अकाउंट से आ रही है. ओके. देन ऑफ कोर्स देयर वाज अ टाइम जहां पे सिर्फ आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेते थे. नाउ इट्स क्वाइट इजी टू gain access, not gain access, to gain the information, ID and password of an individual, to overcome that obstacle. Nowadays platform they have come up with two-factor authentication. सिर्फ आईडी पासवर्ड डालने से लॉगिन नहीं होगा. यू गोइंग टू रिसीव एन ओटीपी ऑन योर फोन, और अगर आप लैपटॉप पे लॉगिन कर रहे हो, द ऐप, द वेबसाइट, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इट इज गोइंग टू आस्क यू टू गो टू योर ऐप टू गेट अ वन टाइम पासवर्ड फ्रॉम द ऐप. ओके. बेसिकली एक सॉरी मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा खांस रहा हूं, बट या बेसिकली आपको आईडी पासवर्ड तो एंटर करना ही है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट देयर विल बी अनदर न्यू पासवर्ड दैट विल बी जनरेटेड, दैट विल बी यूजफुल ओनली फॉर दैट लॉग इन सेशन. ओके. हर बार आपको नया एक ओटीपी जनरेट होगा. सो दिस इंश्योर्स कि किसी के पास आईडी पासवर्ड है भी, बट द पर्सन विल नॉट बी एबल टू लॉग इन विदाउट द एक्सेस टू योर फोन एंड योर नंबर. ओके. Then of course regularly check your account, आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, and if you feel कि ये पर्सन मैं नहीं जानता हूं या नहीं जानती हूं इस पर्सन को, remove that person from your account. So that was that. Now जैसा मैंने बताया, another objective for creating a fake ID is obscene content नहीं, बट आपने फेक बंदे ने फेक आईडी बना लिया एंड देन दूसरे सबको मैसेज कर करके पैसे मांग रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस, राइट? इवन आई हैव बीन रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके अकाउंट हैक हो जाते हैं, देन वो वहां से पैसे मांगते हैं. बट द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल वाज भगवान सर का अकाउंट. ओके. भगवान सर को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके, क्यों खुशी हो रही सर का अकाउंट की कॉपी बनी. ओके. सो as soon as he came to know about the fake account, he took the screenshot, posted it on his ID, and let me show you, one of his friend received the message from this fake ID asking for money. Look at the reply the person gave him. So the person asked 20,000 rupees. The other person said, आप ओरिजिनल अकाउंट से भी पैसे मांगते तो मैं नहीं देता. Of course we all know भगवान सर किसी को मैसेज करके 20,000 रुपए तो नहीं मांगेंगे, right? Common sense. Okay, so now why would a person, कोई भी पर्सन, अगर कोई आपको मैसेज करके पैसे मांग भी रहा है, तो आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए, इधर दो सिनेरियो में बंदा आपको मैसेज करे, इधर ही डजंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, राइट? आपका बहुत पुराना दोस्त है, सालों से बात नहीं हुई है उससे, या फिर कोई जस्ट अक्वेंटेंस है, ज्यादा बात नहीं होती हमारी, जस्ट वी जस्ट नो ईच अदर, इसलिए हमारे फ्रेंड लिस्ट में है. सो the person messages you asking you for money. Now इसमें यही है कि उसने अपने सारे क्लोज कॉन्टैक्ट से तो पैसे मांगे लिए, राइट? इफ ही डजंट हैव योर नंबर, यू आर द लास्ट पर्सन जिससे वो पैसे मांगेगा, राइट? तो उसने अपने सारे क्लोज कॉन्टैक्ट से पैसे मांग लिए, ही हैज एग्जॉस्टेड ऑल दोज रिसोर्सेज, उसके बाद वो आपको मैसेज कर रहा है ना? दैट्स अ रेड फ्लैग. एनीवेज आपके पैसे डूबने वाले, तो पैसे नहीं देना है अगर जेन्युइन है तो. नाउ सेकंड केस है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जिसके पास ऑलरेडी आपका नंबर है, बट वो आपको मैसेज कर रहा है फेसबुक या इंस्टा पे पैसे मांगने के लिए, है ना? कॉमन सेंस, अगर उसके पास नंबर है तो वो डायरेक्टली कॉल या मैसेज करेगा आपको, नॉट ऑन इंस्टा और फेसबुक, राइट? सो इन बोथ द केसेस आपको पैसे नहीं देने हैं. ओके. बट स्टिल आप शायद थोड़े गलिबल हो एंड आपने पैसे दे दिए फॉर सम रीजन, मोस्ट प्रोबेबली पैसे वापस तो नहीं आते हैं, बट द लीस्ट यू कैन डू इज रिपोर्ट इट टू द साइबर क्राइम. इससे क्या होगा, देयर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी कि आपके पैसे वापस आएंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जितने ज्यादा आप रिपोर्ट करोगे, जितने ज्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस होते हैं स्कैमर्स को पकड़ने की, राइट? नाउ द थर्ड स्कैम इज, ये इमेज देखी है, कैंटीन में तो देखी होगी, ये क्यूआर कोड रखा होता है. इसका क्या करते हैं हम क्यूआर कोड का?
स्कैन करते हैं? फॉर पेइंग द मनी, है ना, भेजने के लिए पैसे, नॉट रिसीव करने के लिए। ये याद रखना ना। आई विल टेल यू एन एक्चुअल इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी। मेरे पैसे डूबे नहीं, डोंट वरी, बट या आई joined Pacific in the year 2022 January. So I was in Pune before that. So when I decided I'll be joining PDC, मुझे मेरा सामान बेच के ही आना था, of course. So I posted my refrigerator on OLX and Quikr. I received a message on OLX from a person. And yeah, before that, फ्रिज मैंने खुद सेकंड हैंड 3000 में खरीदा था, बट मैंने पोस्ट किया था 5000 में। ना लेट मी टेल यू व्हाई। लोग बार्गेन करेंगे, ऑफ कोर्स दैट्स कॉमन सेंस, लोग बार्गेन करेंगे, एंड देन आई थॉट 5000 से बार्गेन करके 3000 पे बेच दूंगा। बट द पर्सन दैट कॉन्टैक्टेड मी, वो 5 में रेडी हो गया। ओके, नाउ व्हाट ही टोल्ड मी इज कि वो आर्मी में है एंड वो आज नहीं आ सकता रिसीव करने के लिए। व्हाट एंड ही सेड कि मैं कल आ जाऊंगा लेने के लिए, बट आई विल ट्रांसफर 1000 रुपीज एज अ टोकन अमाउंट, राइट? एंड देन ही सेंट मी अ QR कोड ऑन व्हाट्सएप कि सर आप ये कोड स्कैन कर लीजिए, आपका 1000 रुपीज आपको मिल जाएंगे मेरी तरफ से, है ना? सो मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं, तो मैं समझ गया क्या चल रहा है यहाँ पे। सो मैंने काफी देर उसकी टांग खींची, एंड देन फाइनली ही अग्रीड कि हाँ मैं स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो इट एंडेड देयर। ऑफ कोर्स मुझे इतनी अकल थी कि स्कैन करने से पैसे जाते हैं, आते नहीं है। ये चीज आपको भी ध्यान रखना है। दिस इज क्वाइट कॉमन, लोगों के लाखों रुपए गए हुए हैं इसमें। ओके, अगेन फॉर सम रीजन आप में से किसी से, आपके फ्रेंड से, रिलेटिव से पैसे चले गए हैं, अगेन द सेम थिंग, रिपोर्ट इट टू द पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम वेबसाइट। देयर इज अ लेस चांस, क्वाइट लेस चांस कि आपके पैसे वापस आएंगे, बट अगेन इट विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस स्टेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आजकल बहुत कॉमन है, टेलीग्राम प्रीपेड जॉब स्कैम्स। सबको किसी ना किसी को मैसेज तो आया होगा, घर बैठ के काम करो या ऑनलाइन जॉब, राइट? या है ना? ठीक है, सो आई टेल यू एन एक्चुअल इंसिडेंट जो हुआ है। ओके, लास्ट ईयर के अराउंड अगस्त में अ गर्ल नेम प्रिया फ्रॉम हैदराबाद, शी रिसीव्ड व्हाट्सएप मिस कॉल। उन्होंने फिर उसको मिस कॉल देख के मैसेज किया, हु इज दिस, एंड बेसिकली द गाय इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज एन HR फ्रॉम अ कंपनी, कि वो ऑनलाइन घर बैठे जॉब दे रहे हैं, वैसे टाइप। एंड दे सेड कि वी गिव फेक लाइक्स एंड कमेंट्स टू द इन्फ्लुएंसर्स, बेसिकली बीट इंस्टा, बीट फेसबुक, बीट यूट्यूब, उनको बस आपको जॉब दिया जाएगा कि ये 3 वीडियोस पे जाके लाइक करो एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड आपको पर टास्क, बेसिकली एक लाइक किया एक वीडियो पे, दैट इज 1 टास्क, पर टास्क आपको 50 रुपीज मिलेंगे, राइट? सो उसने द गाय फॉरवर्डेड 3 लिंक्स, द गर्ल शी लाइक द वीडियोस, स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दिया, एंड she was asked to move to Telegram to receive the payment. Okay, and she already had Telegram, तो वहां पे she moved to Telegram and she actually received the 150 rupees. Okay, so this is the trust building phase in this scam. ना इसमें इनको और टास्क के बारे में बताया गया, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, there were 24 डेली टास्क, 20 फ्री टास्क एंड 4 प्रीपेड टास्क। ओके, 20 फ्री टास्क जो मैंने अभी बताया, लाइक करो या कमेंट करो कोई भी वीडियो पे जाके, एंड यू विल गेट द मनी 50 रुपीज पर टास्क। एंड देन देयर वर सम प्रीपेड टास्क जिसमें था कि दैट यू पे 1000 रुपीज एंड देन वी गिव यू टास्क, आप अगर वो टास्क कंप्लीट कर लोगे यू विल रिसीव 1200 रुपीज इन रिटर्न। ओके, सो ऐसे 4-5 टास्क उनसे कराए, हर बार स्टेक्स बढ़ाते गए। फर्स्ट इट वाज 1000, सेकंड इट वाज 10,000, धीरे धीरे बढ़ाते गए, एंड दे वेंट अप टू 5 लाख रुपीज, एंड उसके बाद रिस्पॉन्स ही नहीं आया। सो जो पैसे थे वो डूब गए। ओके, नाउ द गर्ल शी केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, MBBS में एडमिशन लेने वाली थी, पेरेंट्स मिडिल क्लास है तो लोन लेके अरेंज कर रहे थे पैसे। सो ऑफ कोर्स शी वाज अफ्रेड कि घर पे कैसे बताएं, सो शी कमिटेड सुसाइड। नाउ अस्वद का नाम क्यों है? अस्वद पीछे बैठा हुआ है, द PG। नाउ द आयरनी इज कि जब मैं ये लेक्चर लास्ट टाइम ले रहा था, सैटरडे, फ्राइडे ले रहा था, सॉरी, for the first years, Aswad received the message, he was added to a telegram group जिसमें actually ये टास्क मिल रहे थे, and the very next day उसको ये मैसेज आता है उसी ग्रुप पे कि I have been scammed.
सो रिमेंबर, कभी भी आपको ऐसे ग्रुप में ऐड करते हैं, बेटर है यू एग्जिट द ग्रुप. नाउ देयर इज अ फ्लिप साइड टू दिस. नाउ प्रिया she was completing the task, right, and she was receiving money, and then came the prepaid task. Now you're going to get an option if you come in contact with these scammers. अगर आप बोल दो भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं प्रीपेड टास्क कर ही नहीं सकता, then they're going to give you another option कि if you have an account, we have another opportunity for you. बैंक अकाउंट है तो we have another opportunity for you. What they'll do is they're going to ask you कि आप अपने अकाउंट से मेरे दिए हुए यूपीआई एड्रेसेस पे अमाउंट ट्रांसफर कर दो. सो व्हाट ही इज गोइंग टू से इज कि इफ यू ट्रांसफर 1000 रुपीज फॉर मी, आई विल गिव यू 1100 रुपीज. ओके, वो एक्चुअली 1100 रुपीज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड यू आर सपोज टू डिस्पर्स 1000 रुपीज. नाउ इसकी वजह से स्कैमर डायरेक्टली विक्टिम के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, वो किसी और के थ्रू पेमेंट करा रहा है. सो इफ देयर इज एनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, जो पे कर रहा है वो फंसेगा. सो देयर आर टू विक्टिम्स हियर. One who is paying on behalf of the scammer, second जिसके पैसे डूब रहे हैं, जो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, सो ऐसे स्कैम्स में नहीं फंसना है, समझ आए. एंड अगर सपोज आपके पैसे डूब भी गए हैं तो रिपोर्ट करना है. एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पैसे डूबते हैं, बट आई हैव सीन केसेस जिसमें पैसे एक्चुअली रिकवर भी हुए हैं, ऑल्दो नॉट कंप्लीटली, बट some amount has been recovered in some of the cases. So it is better to take that chance and report it to the police. Okay. Now ये कितने लोगों को इंटरेस्ट आया आफ्टर कोविड? हाथ ऊपर करो. कोई बात नहीं, मैं तो हूं, मैं इंटरेस्टेड था. आप में से किसको इंटरेस्ट है? किसी को नहीं? डोंट टेल मी. हाँ, चलो ठीक है. Now, whenever you come across, basically, how are the people getting interested into stock markets? Because Facebook, YouTube, Insta पे बहुत सारे पोस्ट देख के, right? Regular income from stocks, passive income for beginners, right? ऐसा देखा होगा काफी लोगों ने. So it was a common theme. ऐसे ही बैनर्स रहेंगे, थंबनेल्स रहेंगे, वीडियोस या पोस्ट के. Generate passive income from stock market. पैसिव इनकम आइडियाज फ्रॉम स्टॉक मार्केट. बेसिकली इन सब में कॉमन थीम वाज यू आर गोइंग टू जनरेट पैसिव इनकम, लाइक इन्वेस्ट करके घर बैठ के पैसे कमाने, राइट. बट द बेसिक आइडिया ऑफ पैसिव इनकम इज कि यू नीड टू हैव एन एक्टिव इनकम फर्स्ट फॉर द पैसिव इनकम, राइट. सो टू फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड एन एक्टिव इनकम एंड देन थिंक ऑफ बिल्डिंग अ पैसिव इनकम. पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी देयर सम अमाउंट जो आप अर्न कर रहे हो, उसमें से काफी अमाउंट बच रही है, तो उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इनकम इज यू बॉट अ प्रॉपर्टी, लाइक आपने कोई बंगलो या फ्लैट रेंट पे लिया एंड यू रेंट पे नहीं, खरीद लिया एंड यू पुट इट ऑन रेंट. सो एवरी मंथ आपको रेंट आ रहा है उसका. दैट इज पैसिव इनकम, बिकॉज उसमें आपको एक्टिवली कुछ काम नहीं करना है, एक बार आपने सेटअप कर दिया एंड इट इज डन, राइट. So that is that. So for that you need active income first. Now for example, you know me, I'm an oral and maxillofacial surgeon first, but I'm also a 3D artist and I'm also a Python programmer. कहाँ गया? मैंने इमेज, okay, yeah, 3D artist में I'll show you an example what I do with my 3D art. So मैंने एक्चुअल 3D आर्ट वाला पार्ट हटा के VFX ऐड कर दिया. ओके, सो दैट वाज मी बीइंग अ 3D आर्टिस्ट एंड अ VFX आर्टिस्ट एंड आई एम आल्सो अ पाइथन प्रोग्रामर. स्केच तो कराए होंगे काफी लोगों ने फन फेयर में. दैट वाज ऑल मी. द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग वाज डन बाय मी. ओके, सो आई जनरेट इनकम फ्रॉम ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स. उसके बाद आई कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सरप्लस इनकम है, राइट. So I've seen many people जो एक्चुअल लोन ले लेके स्टॉक मार्केट्स में डालते हैं, and I've seen people जिनके सारे पैसे डूब गए उसमें. वो नहीं करना है. रिमेंबर दिस सिंपल रूल. अभी आई वुड सजेस्ट यू गाइस दैट आपकी एक्टिव इनकम अभी क्या होने वाली है, यू गोइंग टू बी अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट, राइट. तो अभी आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट फाइनल ईयर कंप्लीट करने तक आप अपने जो स्किल है, योर ट्रेड, फोकस ऑन दैट, लर्न द ट्रेड प्रॉपरली एंड देन यू कैन गो इनटू अदर स्ट्रीम्स, राइट.
that. Now another thing, एक बार dentistry हो भी गया and you started earning properly from dentistry and you want to go into stock market, but उसमें एक rule that I follow and I suggest आप भी follow करो is invest the amount that you can bear to lose. अगर कभी फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करते हो, रिमेंबर दिस रूल, उतना पैसा ही डालो जितना आप डुबा सकते हो, राइट? ओके, नाउ देयर इज अनदर स्कैम जो अभी लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट से मुझे पता चला, विच आई एडेड जस्ट नाउ. नाउ यू माइट गेट अ कॉल फ्रॉम अ कंपनी कि आपका कुछ ऑर्डर है एंड यू से कि नहीं मेरा तो कोई ऑर्डर नहीं है, तो दे गोइंग टू टेल यू कि आप एक काम करिए, यू जस्ट डायल दिस नंबर ऑन योर फोन **67* एंड फॉलोड बाय योर फोन नंबर. इससे क्या होगा, आपके जो कॉल्स हैं सारे फॉरवर्ड हो जाएंगे दूसरे नंबर पे, ओके, जिसका नंबर हम ऐड कर रहे हैं. सो बेसिकली उससे क्या होगा, दे कैन बेसिकली वो कुछ ऑनलाइन बाय करें या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं एंड आपके नंबर पे ओटीपी आ रहा है, वो मैसेज आ रहे हैं, आप सपोज इग्नोर कर रहे हो कि ओके मैंने तो ओटीपी नहीं मंगाया, यू आर इग्नोरिंग द मैसेजेस. फाइनली इफ यू डोंट एंटर द एसएमएस, ओटीपी एंटर नहीं कर रहे हो, यू गोइंग टू रिसीव अ कॉल, राइट? कितनी बार होता है एसएमएस नहीं आया तो कॉल आ जाता है आपको. सो ओटीपी के लिए जब कॉल आएगा द पर्सन कैन गेट दैट ओटीपी. ओके, नाउ सपोज इफ यू फील अगर कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, व्हाट यू कैन डू इज you can just dial this number again, of course asterisk की जगह hash ऐड कर दो, that's it, and the call forwarding will be disabled. ठीक है? एंड अगेन ऑफ कोर्स आपको जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है उसको ये रिपोर्ट करना है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था. नाउ दीज वर द स्कैम्स दैट वी डिस्कस्ड हियर. फेक प्रोफाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं टू मैनेज इट? रिपोर्ट करना है टू द सोशल मीडिया अकाउंट एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू रिपोर्ट इट. सेकंड, कंप्लेन, लॉन्च अ कंप्लेन विद द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म by giving your ID to prove, by proving that you are the original person. And the last is cyber crime cell. and बाकी सारों में तो बस cyber crime cell में जाके आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, that's it. Okay, and then we have call forwarding. उसका तो मैंने बताया that you can replace the asterisk with hash and enter the number and the call forwarding will be disabled. And of course make sure that you inform the telecom company. तो एनी मोर क्वेश्चंस? या फिर किसी के साथ ऐसा कुछ, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया था, मेरे साथ ऑलमोस्ट स्कैम हो ही रहा था, ऐसा किसी और के साथ हुआ हो, दे कैन शेयर.